Hello friends, welcome to the channel Better Communication, Better Life. On this channel, we always discuss how one can become a better communicator, because communication is the only thing that makes the difference. So how we can make our language impressive and effective. So all these things are discussed here on this channel time to time. And today in the same series, I have brought a new concept for you. Definitely it is a new for you, and this is the ultimate concept to make our language impressive. So just don't skip the video. Today we are going to discuss very fruitful and very important thing. Friends, you have heard English and you have heard the word Hindi, but today I am going to introduce a new concept, that is Hinglish. Hinglish. Yes, Hinglish. I hope you would have heard or not, but it is a well accepted concept in speaking a language. And especially in our country, English, pure English people do not speak because others do not understand. And when we speak pure Hindi, we cannot make our language impressive. So first we should understand what is Hinglish. Hinglish means a good blend, a mix of Hindi and English both. A blend of Hindi and English both. That is called Hinglish. And it is authentic and well accepted. People use that, and we will have to use that, because in our country people understand English but not fully English. When you go somewhere and start speaking without using a single word in Hindi, people will detract from you. They won't listen to you because they won't understand. And if you speak pure Hindi, again poor impression will be there. So this is the best way to use Hinglish to make our language impressive and effective. But now the question arises, how we can use Hinglish? Yes, I am giving you some tips. First, we must try to use maximum words of English while speaking Hindi. Just I give you an example. Just see, आप कम्युनिकेशन करते टाइम मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स को यूज करें. अब देखिए, आप ध्यान से, मैंने जो सेंटेंस बोला है, सेंटेंस मैंने हिंदी में बोला है, लेकिन इसमें कई सारे वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में बोला है. बस दैट इज द राइट वे. अगर आप अधिकतम हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में रिप्लेस करके बोलना सीख जाते हैं, भले आप हिंदी में सेंटेंस को बोला है, बट यू हैव यूज्ड मैक्सिमम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, देन योर लैंग्वेज विल बिकम इम्प्रेसिव. अगर आप पूरा सेंटेंस कंप्लीटली नहीं बोल पा रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू यूज मैक्सिमम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. और एटलीस्ट आपको जो वर्ड्स अच्छे से आते हैं, जिन वर्ड्स का आपको यूज आता है, जिनका आपको मीनिंग है, तो कम से कम उन वर्ड्स को तो आप इंग्लिश में बोलिए, तो कम से कम आप लोगों की लैंग्वेज इंप्रेसिव हो. हम एक साथ इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे. और मैक्सिमम एक तो तरीका ये. एंड द नेक्स्ट वे इज दैट use maximum sentences in English. Suppose you have spoken 20 sentences in a communication when you are talking to some person. Okay, 20 sentences जब आपने बोले हैं, तो आपको 20 में से 15 sentences इंग्लिश में आते हैं, तो 15 इंग्लिश में बोलिए, 5 हिंदी में बोलिए. अगर आपको कम आते हैं तो पहले 5 आप इंग्लिश में बोलिए, बाकी आप हिंदी में बोलिए. तो धीरे 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 आपकी हिंदी इंग्लिश बनेगी, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है वो प्योर इंग्लिश बन जाएगी. दिस इज द राइट वे. एंड इंग्लिश इज वेल एक्सेप्टेड. ऑल पीपल लाइक दैट लैंग्वेज वेरी मच. आपने कई स्पीकर्स को देखा होगा, इवन मैं भी अभी बोल रहा हूँ, मैं कई सारे वर्ड्स हिंदी में भी यूज कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी यूज कर रहा हूँ. तो आप लोग अगर ऐसा कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की लैंग्वेज बहुत इंप्रेसिव होने वाली है, और आपकी लैंग्वेज लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है. और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतर कम्युनिकेटर बन जाएंगे, बहुत अच्छे काउंसलर बन जाएंगे. आप अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे. तो आप लोग आज से इस बात को शुरू करें कि मैं मैक्सिमम सेंटेंसेज इंग्लिश में बोलूंगा और मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश के यूज करूंगा. और आप नए नए वर्ड्स को यूज करिए. जैसे आप कई सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें आते पर अपन उनको यूज नहीं करते. आप उन वर्ड्स को यूज करना सीखिए, और धीरे धीरे उन वर्ड्स को आप टंग पर लाइए. तो जब आप डेली बोलचाल की भाषा में वो वर्ड्स
आपके जब अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे तो आप नहीं चाहते हुए भी वो शब्द अपने आप आ जाएंगे और आपकी लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही इन्फ्लुएंसिव बनने वाली है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आपको ये इंग्लिश वाला कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा और इसके ऊपर आप वर्क करिए और ये सबसे बेहतर तरीका है अपनी लैंग्वेज को मोस्ट इफेक्टिव बनाने का। और इंडिया में तो कम से कम आप लोग इसका सबसे अच्छा यूज करके बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज आप लोगों को मैंने एक नया कंसेप्ट दिया और इसके ऊपर आप जरूर वर्क करेंगे। और लास्ट में अपने चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, शेयर जरूर करिएगा। समय समय पर मैं बहुत अच्छे वीडियोज और नए नए कंसेप्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि हमारा एक ये इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने की एक लंबी यात्रा है जो अनवरत चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी विद पेशेंस। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।